See, so I am speaking this on recording. Normally, I don't discuss such thing on the recording. I mute the recording. I see a lot of leniency and negligence from the candidates. So it's a shame that the faculty has come and he is waiting for the candidates to join. I would never entertain such students. I kick such students out of the class if anyone doesn't adhere to the timings. So this is the first and the last instance wherein I am tolerating it. I have called few parents also to discuss that the candidate has to show some seriousness. So if second time this happens, Aman, just highlight it to me that people are joining late. 1-2 minutes I can understand. But if there is a continuity that people are joining late, then we'll have to stop the training. Because if there is no thirst and hunger from the candidates, then as a trainer, we shouldn't be entertaining such candidates. Is my instruction crisp and clear to everyone? Vishal, Sakshi, Sania, Chiba? Or should I repeat myself? Yes, sir, it's clear. Yes, sir. Clear, right? I'm very clear what I'm speaking this. If next time I see this absenteeism, or if anybody has any problem of the date or the timing, or if anybody is planning for a leave, sir, I will be out of station for so and so a date, please inform the trainer at least 24 hours prior. I don't want last minute messages. Today I will not join, today I will join late. If there is any emergency, any high priority task which has to be entertained, any health issue is there, whatever, just text the faculty or text on the group, sir, I am traveling. And if you are planning a leave in advance, at least inform a month prior. Sir, I have planned a leave in the month of June. So from June this date to this date, I will not be available. So we can schedule the batch accordingly. Or at least if you're planning for a small, at least 1 week prior would be appreciated. If not, at least 24 hours prior at least. Sir, I will not be available for this session due to some personal emergency, XYZ emergency it is. I don't want to discuss the emergency, just write personal. But if the class is scheduled at a particular time and the trainer has joined, 1 or 2 minutes buffer is understandable. But people are joining 10 minutes late, that is not at all accepted. And I as a trainer don't take this. Neither will any of my trainers take it. So Vishal, set your priorities pretty straight. अगर देखो बिजनेस में जाने का है तो फिर बिजनेस में ही रहे भाई, दो कश्ती में सवार मत हो. और अगर देखो जॉब ओरिएंटेड तेरा अप्रोच है और तुझे लग रहा है कि सर आई वांट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो प्लीज हेल्प मी सर डूइंग दैट. So if we are helping you out and you are not responding, then we will take a very strict action on that. So my instruction should be first session में ही मैं clear cut बात कर रहा हूँ. और सेम आपको ऐसा लगे सर हम तो टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर ही जगह पे नहीं है, तो भी आप लोग भी रेस कर सकते हैं साला. सर प्लीज आस्क योर इंस्ट्रक्टर टू बी ऑन टाइम प्लीज. तो वैसा ये दोनों तरफ से बात चलेगी. अमान समझा? Yes, sir. Same you also, Aman. If you are taking a leave, so don't inform in the morning, today no session. You can inform me just at least 24 hours prior. Sir, I have some exams or I have some personal commitments on this date. So please schedule the class accordingly. Okay, sir. तो इसको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म से चलाओ भाई. ऐसे ही बस उठ के आ गए एकेडमिक जैसे करते वैसे, वो अप्रोच इसमें काम नहीं करेगा. एक बात तो ये मुझे बोलनी थी. दूसरी बात, कौन डेडिकेटेडली प्रैक्टिस कर रहा है 2-2 घंटे डेली बेसिस पे? Sania, are you practicing hours a day? Yes, sir. CSS कर रहे हैं. हाँ, 2 hours मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई हद नहीं है. मैक्सिमम आप 6 दो, 8 दो, 10 दो, 12 घंटे दो, उसकी कोई लिमिट, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है. बट 2 hours मिनिमम मुझे चाहिए. तो अमान आफ्टर एवरी सेशन नो गिव देम असाइनमेंट्स. Yes, sir. इनको आज से start असाइनमेंट होता है. बिजी रखो इनको. हाँ, और sir. आते ही अगर कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, सर मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ पर कोई बंदा या कोई बंदी इसको सीरियसली नहीं ले रहा है और एक्सक्यूज दे रहा है, सीधा मेरे पास एस्केलेट करना.
यस सर। अपने को इनसे बहुत काम करवा के लेना है, और बहुत ये कोर्स का पेस और ये कोर्स का जो अपन ने सोचा हुआ है पर्पस, वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस कोर्स करा के भेज दिए, सर क्या करें हम लोग, हमको कुछ आता भी नहीं। तो ये चीज मैं टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। डे वन से आई एम सेटिंग द एक्सपेक्टेशन, एंड मे बी वंस इन अ मंथ आई हैव अ पेरेंट टीचर कॉल ऑल्सो, wherein the candidate will also be there, the trainer will also be there, and the respective parent will also be there on the call, and we will be discussing the progress of every student. तो प्रोग्रेस हम तब ट्रैक कर सकते हैं जब असाइनमेंट्स कौन सबमिट कर रहा है, कौन सबमिट नहीं कर रहा है, या कौन कितने टाइम पे कर रहा है, कौन कितना लेट कर रहा है। तो जब वो डेटा होगा तब हम लोग बात कर सकोगे पेरेंट्स से। सो ठीक है, so I won't waste much time now. Aman, record this, and after the session is over, no, within if it is possible for you, if there is no high priority job immediately after the session, sir, I have to run immediately somewhere after the session. So after the session, it is not possible for me, but maybe in the evening I can do it. So I would prioritize after the session. If you can upload the video, that would be excellent. And if you have any priorities, then you can upload it in the evening. But try to upload the video so that those who are practicing can fall back on the video if they're stuck anywhere. यस सर। Okay. And that is the first point of contact, that watch the video and practice. If after watching the video you are still struggling, guys, so you can take a screenshot of your error message and post on the group. So whichever trainer is available that time will respond to you. So we will take full care that you don't waste time waiting. Sir, I had an error, and that error took up the entire day. I was not able to resolve the error, so I could not practice further. So wherever you're stuck up, just take a screenshot and post on the group. Whichever trainer is available that time will respond to your query. So we'll try to do that. So Aman, that's the request, that if you can upload the video immediately, that would be great. If you have any task immediately after the session and you have to go to college or somewhere, then you can upload it in the evening also. यस सर। ओके, अब ये तो जो थी वो जो मुझे बोलने की थी। अब तुम लोग को किसको क्या बोलना है, आज ही बोल दो फर्स्ट डे को। यस साक्षी, डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड टू शेयर? सर टाइमिंग के बारे में, ऑफलाइन के बारे में, ऑनलाइन के बारे में, या सर ऑफलाइन कब बुलाएंगे, ऑनलाइन कब होगा? No, sir. कुछ नहीं बोलना। सानिया, मेरा तो नहीं, ये sir. है कि वंस इन अ वीक तो फैकल्टी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो फैकल्टी की अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटी रखते हुए, सो टुडे देयर वाज सम the faculty couldn't make it. He had some other tasks which we respect. So today we are taking online. तो अमान, वीकेंड को है पॉसिबल सैटरडे को एक दिन हम ऑफलाइन यस ले, सर। और कौन पड़ेगा सैटरडे कि इज कौन बेस्ट बंदा ऑप्शन। कर रहा है? हाँ, सैटरडे अच्छा ऑप्शन है सर। है ना? तो आज सैटरडे तो अपन ऑनलाइन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स वी विल टेक ऑफलाइन। सैटरडे सिर्फ ऑफलाइन होगा, ठीक है? हाँ सर, सैटरडे हम लोग डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं 1-to-1। अभी इशू क्या है, ये विशाल ने पूना में होना ना सैटरडे को पर। सर मैं हाँ, ट्राई करूंगा, पर मैं तो रोज क्लास आने का सोच रहा हूँ सर। आ जाना, तो क्लास अटेंड कर, मैं क्लास में रहता हूँ। तेरा पेस हाँ फास्ट सर। हो जाएगा उससे, लर्निंग का पेस। हाँ सर। तो तू डेली अभी। क्लास में आ, क्लास का तेरे को चाबी देता हूँ मैं। तो क्लास में हाँ। आके बैठ, अगर क्लास बंद भी रहा ना तो क्लास खोल, वाईफाई से कनेक्ट कर, प्रैक्टिस कर। कोई ना कोई फैकल्टी क्लास में रहता ही है, अगर तू अटक गया तो तुझे हेल्प कर देंगे। हाँ सर। तो दिस इज द बेस्ट। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन कम डेली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर चलिए। ठीक है। हाँ। शिबा, यू हैव टू से एनीथिंग about the timing, about the mode of training, hybrid mode, model, online model, offline model, anything you have to say? No, sir. Saturday is fine for you for online? Yes, sir. So once in a week, I would expect everyone to be present with the faculty interaction. Even I'll be there, the faculties will be there, so we will track your progress. अभी तो बहुत स्लो मोड में चल रहे हैं, आगे जाके इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। जब इंटेंसिटी हाई हो जाएगी तो फिर तुम लोग वो टाइम पे स्ट्रगल मत करना कि सर अभी तो बहुत बाउंस जा रहा है, अभी तो सब फास्ट जा रहा है। तो जिसने Yes. स्लो टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया ना, जब फास्ट होगा तो उसको समझ में आएगा नहीं क्या चल रहा है। तो अभी से ही अपने माइंड को ट्रेन करो कि मुझे 3-4 घंटे डेली देना है। सर अभी तो ये तो बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, तो मुझे आता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा अभी आराम से काम कर रहा हूँ। बट जब आगे जब वो डिफिकल्टी होगा ना महीने भर के बाद में, तो फिर बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत अभी बहुत फास्ट हो गया हमारे लिए।
तो फास्ट क्यों हो गया? क्योंकि जो स्लो में तुम लोग ने प्रैक्टिस नहीं करे इसके लिए। ठीक है अमन, ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ये रिकॉर्डिंग रखना अमन। ये मुझे पेरेंट्स से जब बात करनी होगी तो आई ब्रिंग दिस रिकॉर्डिंग अप, कि ये बातें डे 1 को समझा दी गई थी इन लोगों को। ठीक है अमन, यू कैन स्टार्ट, आई जंप अप। तो या आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। सो मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो या ये हमारा टॉपिक है आज का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का भी कोटेशन पीपीटी इसमें ही है क्या सर? हाँ, ये सब मैं एक साथ बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, अभी मैंने चलिए। आगे का बनाया नहीं है, जैसे बन जाता है मैं आप लोगों के हाँ, साथ सेंड कर दूंगा ये पीपीटी। ओके सर। हाँ। हाँ, तो आज का हम लोग का ये है कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है, आप ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ब्लॉक कोड, क्यू, एब्रीविएशन, एड्रेस, साइटे एंड बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट। ये सब हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो देर नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट कोडिंग पार्ट पे ही जंप करते हैं। तो यहाँ तक अभी यहाँ से इधर तक तो जो हम लोग ने कल तक पढ़ा था वो सबको क्लियर है क्या? उसमें कोई डाउट है? क्लियर है। नहीं, डाउट नहीं है उसमें, क्लियर है, वो प्रैक्टिस तो क्लियर है की ना? थी वो। तो हाँ, तो चलो अभी हम हाँ, लोग क्या क्लियर। करते हैं कि कोटेशन ब्लॉक कोड क्या है वो समझते हैं। तो ब्लॉक कोड क्या है? ब्लॉक कोड इज एन ब्लॉक एलिमेंट कोड। दैट डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। यानी ब्लॉक कोड हमको क्या बताता है कि अगर समझो मेरा एक ये है कि मैंने गूगल से या फिर कोई भी एक वेबसाइट रहती है विकिपीडिया, तो उससे समझो मैंने कुछ लिया है, यानी मैंने कोई कोई पैराग्राफ्स लेते हैं उधर से। लेकिन मैं बता रहा तुम लोगों को, तो जैसे ये विकिपीडिया है, अभी समझो मैंने इधर से एक इनका पैराग्राफ ले लिया, तो अब इसमें क्या रहता है कि मेरे को ब्राउजर को ये बताना पड़ता कि मैंने ये इधर से लिया। रेफरेंस नहीं, क्या एक रेफरेंस बताना पड़ता कि मैंने ये है, ये मैंने इधर से लिया। तो इसके लिए क्या आता है कि ब्लॉक कोड एक एलिमेंट रहता है जो अपन यूज करेंगे। तो बेसिकली अभी इसमें क्या करेंगे, एक अपन पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें अपन लिखेंगे ये लिख दिया मैंने। ये साइट रहता है जो बताता है कि कौन से साइट से लिया हमने। जैसे कि अभी मैं ले रहा इससे ना, विकिपीडिया से, तो ये साइट का एड्रेस मेरे को इसमें देना पड़ता कि मैंने इधर से लिया। और जो एलिमेंट चाहिए, ये मैंने हॉकी का लिया, तो मैं इधर से कॉपी कर लूंगा ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन और इधर पेस्ट कर दूंगा ब्लॉक कोड में। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे मैं गो लाइव करूंगा, ये दिख रहा, ये मेरे को इन्फो अबाउट हॉकी दिखा, और ये थोड़ा इसके आगे आ गया, दिख रहा ना? हेलो? यस यस, दिख रहा है। सर पर हाँ, वो दिख रहा है। लिंक लिंक पेस्ट करना जरूरी है क्या? मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं तो कर ये सकते कैसा क्या? रहता है कि अपने को ब्राउजर को बताना पड़ता कि बाबा ये मैंने इधर से लिया। बेसिकली तो ब्राउजर खुद से ही ले लेता, पर कभी कभी अपने को बताना पड़ता अच्छा। कि हाँ बाबा ये वेबसाइट है, इन लोग के रेफरेंस से मैंने इधर से ये पैराग्राफ लिया। तो देख रहे क्या इधर गैप आ गया, तो ये हाँ। बता इन्फो अबाउट हॉकी। अभी यहाँ मेरे को ये वेबसाइट का नाम देने कैसे, जैसे मैंने दे दिया इधर विकिपीडिया। हाँ। अब मैंने ये दिया, तो अभी जो मेरा यूजर है जो इसको पढ़ेगा तो उसको क्या मालूम पड़ेगा इन्फो अबाउट हॉकी, तो ये किधर से लिया मैंने? विकिपीडिया से। विकिपीडिया। विकिपीडिया। तो ये बताने के काम में आता ब्लॉक कोड कि ये मैंने दूसरे सोर्स से लिया है, ये मेरा खुद का नहीं है। समझ आया? यस सर। नहीं तो क्या होता, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट आ जाता। मालूम है ना कि एक जैसा कंटेंट अगर तुम लोग ने लिख दिए पूरी वेबसाइट, तो वो क्या रहता है हाँ। कि गूगल के एल्गोरिथम्स रहते हैं जो उसको स्कैन करते हैं। कोई भी वेबसाइट जब हाँ। अपलोड होती तो गूगल सबसे पहले उसको सर्च, सारे एल्गोरिथम्स रहते गूगल के, तो उसके हिसाब से एसईओ, मालूम है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
तो वो ऑप्टिमाइज करने यूज होता है कि नहीं क्या रैंकिंग बढ़ती है अपनी वेबसाइट की, ट्रैफिक हाँ आता है, सर, यानी बराबर। वेबसाइट का नाम सबसे पहले सजेस्ट होता है अपने को। हाँ, वो सब होता है एसीओ के वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके बराबर वजह से सर। अपने को दिखता, तो अपने को क्या, अगर कोई भी थर्ड पार्टी से अपन लेते या अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते ना, तो उसको ब्लॉक कोड में दिखाना पड़ता। तो ये है ब्लॉक कोड का एग्जाम्पल, कि बाबा ब्लॉक कोड में ऐसे ऐसे दिखता अपने को, समझ में आया। हाँ सर। फिर नेक्स्ट अपन कोटेशन एलिमेंट्स पे जाएंगे। शॉर्ट कोटेशन, कोटेशन बेसिकली क्या था कि अभी कोई भी ये है, इसमें लिखते हैं ना अपन, लॉ देम, ये मैंने कोटेशन में लिख दिया, दिख रहा है ये कोट आ गया, डबल कोट्स। हाँ तो ये कोटेशन एलिमेंट रहता है। ये क्या करता कि कोई भी टैग को कोटेशन दिखाने का रहा तो उसको अपन कोटेशन एलिमेंट यूज करते, दिख रहा ना। यानी कि डबल बराबर। कोट में इन शॉर्ट आ जाएगा अगर अपन ने हाँ, वो डबल कोट यूज में आ किए जाएगा, तो। तो वो रहता कोटेशन हाँ, एलिमेंट्स। ओके। तो देखो अब अपन ने क्या क्या कवर किए, एक तो अपन ने ब्लॉक कोड कवर किए, ब्लॉक कोट और और दूसरा कोटेशन। अपन ने कोटेशन टैग को कवर, एलिमेंट को कवर किए। हाँ। तो ये दो अपन ने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन क्या रहता है बेसिकली, यानी कोई भी तुमको दिखाने का है यूजफुल इंफॉर्मेशन, समझ आ रहा ना, यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर कोई दिखाने की रही ब्राउजर को, जो सिस्टम ट्रांसलेट करता है और सर्च इंजन के टू ऑप्टिमाइज करने का है, तो अपन उसमें दिखाएंगे ये नहीं, एब्रीवेशन में। ये उसका फुल फॉर्म है एब्रीवेशन का, और इसमें टाइटल देना पड़ता अपने को। ये नहीं समझो, एब्रीवेशन क्या आता मालूम ना तुमको, यानी कोई बड़ा रहा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रहा ना, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अपन, WHO। हाँ सर। तो वो एब्रीवेशन रहता। ये WHO एब्रीवेशन में क्या रहता है बेसिकली, छोटे इसमें कन्वर्ट करते हैं अपन टेक्स्ट। तो क्या रहता है, कभी कभी सर्च यानी जो सर्च इंजन रहते हैं उनको समझ में नहीं आता कि अपन ने क्या लिखे, समझ रहे ना। हाँ सर। तो उसके लिए अपन इसमें लिखते हैं, जैसे कि अभी देने का पैराग्राफ टैग। नहीं, मेरे को नहीं समझा ये एब्रिविएशन का। मैं समझाता एक सेकेंड, पूरा पैराग्राफ लिख लेता पहले। अब मैंने क्या किया इधर, WHO इज द बिगेस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आउटपुट मेरे को दिख रहा, कैसा दिख रहा, डॉटेड लाइन आया नीचे, हेलो। हाँ सर। हाँ, आवाज देख। आ रही है हाँ हाँ अभी? दिख रहा है। तो हाँ। इससे अपन क्या दिखाते हैं मालूम क्या, मेनली अभी मेरा कोई बड़ा नाम है WHO है, या फिर दूसरे भी कई नाम से HTML है, तो अपने को अगर समझो शॉर्ट में लिखने का है, HTML का हाँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इतना बड़ा नहीं लिख के शॉर्ट में लिखने का है। लेकिन अपने को ये भी मांगता है कि जो गूगल के सर्च इंजन है वो उसको डिटेक्ट करे कि अपन ने क्या लिखेला है, समझ में आ रहा। हाँ सर। कि हाँ। अभी मैं बोला ना तुमको, जैसे सर्च इंजन सब चीज को रीड करते हैं, तो अपन ने शॉर्ट में लिख दिया वर्ल्ड हेल्थ WHO। पर गूगल को समझना कि अपन ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जैसे अभी टाइटल दिए ना अपन ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन बता रहे, तो बराबर। ये बेसिकली वही काम करता है। यानी बड़ा जो अपन लिखते हैं WHO, उसको शॉर्ट इसमें कन्वर्ट करता है। ये HTML है, फुल फॉर्म क्या है उसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो जब अपन उसको शॉर्ट हाँ। में लिखेंगे ना, तो अपन उसको इसमें लिखेंगे टाइटल में। बेसिकली ये टैग ज्यादा यूज नहीं होते एब्रिविएशन वगैरह, जब अपन साइट बनाएंगे ना तो उसमें ये इतने काम में नहीं आते एब्रिविएशन के साइट्स। ये बस क्या था कि अपन अभी पढ़ रहे टैग्स, तो इसके लिए अपन ये भी पढ़ रहे कि ये हाँ ये भी टैग है HTML में।
आगे ये टैग्स इतने काम में नहीं आते, आगे जो भी काम होता है वो बेसिकली पैराग्राफ, डेव वगैरह वो सब यूज होते हैं, स्पैन, ये टैग्स ज्यादा यूज में नहीं आते। तो अभी अपन ने ये भी पढ़ लिया, एब्रिविएशन सबको समझ आया क्या है एब्रिविएशन? हाँ, मैंने ट्राई किया, मैं एक बार स्क्रीन शो करके बताऊँ क्या, बट वो नहीं हाईलाइट नहीं हुआ वो। प्रॉपर लिखा आपने? एक बार चेक कर लेना ना प्लीज, एक सेकंड। अगर पॉसिबल हो तो, या तो मैं आफ्टर दिस आई विल शो, नो इश्यूज। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे शिवा, आफ्टर द सेशन आप स्क्रीन शेयर कर दो क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलेगा। यस हाँ यस यस, चलेगा। हाँ तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, WHO, नहीं नहीं हम लोग ने पढ़ लिया एब्रिविएशन क्या है। ये क्या करता कि गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन। समझ में आया कि ये हाँ मार्किंग एब्रिविएशन कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर, यानी ब्राउजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा, ट्रांसलेशन सिस्टम्स को देगा और सर्च इंजन को। समझ आ रहा? ये मेन हाँ। काम है एब्रिविएशन टैग का। तो एब्रिविएशन टैग समझ आया सबको क्या है? यस। समझा सर। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टैग आएगा वो रहता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग बेसिकली सबको मालूम है कि कोई ऑथर का नाम वगैरह लिखने का है तो अपने को एड्रेस यूज करना पड़ता है ना, कि अपन लिखते हैं ना कितने बार, रिटर्न बाय ऑथर नेम, ऑथर वगैरह का नाम लिखते हैं। और फिर वेबसाइट्स के नाम देते हैं अपन, यानी XYZ अपन समझो दिए। अब ये क्या रहता, बेसिकली अपन जो भी एड्रेस लिखेंगे, ये दिख रहा, ये एड्रेस टैग में लिख दिया अपन एड्रेस। तो ये क्या करेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथर का ओन डॉक्यूमेंट रहेगा, आर्टिकल रहेगा, तो वो दिखाने के लिए अपन इसको यूज करते एड्रेस टैग को। तो ये सब क्या कर सकते हैं अपन, ईमेल एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट जो इन्फॉर्मेशन रहता, वो ईमेल एड्रेस, URL, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल एक्सेट्रा वगैरह वो सब यूज कर सकते हैं अपन इसके अंदर। समझ में आया? जैसे मेरे हाँ को सर। मेरी साइट का नाम देने का है, www ये है, और मेरा ये समझो मैंने ये लिखेला है, मेरे को इस पे नंबर पे कांटेक्ट करो, तो ये सब मैं किस में दूंगा, कांटेक्ट ये एड्रेस टैग में दूंगा। तो ये क्या करेगा, इटैलिक्स में दिखाएगा अपने को। समझ आया? हाँ सर। ये अपने को मालूम पड़ेगा इससे, ये इटैलिक्स में लिखेगा, जब भी तुम एड्रेस में कुछ भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इटैलिक्स हो जाएगा। समझ आ रहा एड्रेस हाँ टैग क्यों सर। यूज? शिबा क्लियर है? साक्षी, हाँ हाँ, क्लियर है सर। विशाल, क्लियर। हाँ सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस यस, क्लियर। एड्रेस टैग अपन क्यों यूज करते हैं? हाँ फिर इसमें अपना नेक्स्ट टैग जो आएगा वो रहता है साइट टैग। साइट टैग बेसिकली क्या करेगा कि ये डिफाइन करेगा टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, यानी कुछ भी क्रिएटिव वर्क लिखते हैं, समझो बुक, पोएम, पेन, सॉन्ग वगैरह वगैरह जो भी लिखते हैं, तो जो भी क्रिएटिव वर्क रहेगा ना अपना, वो अपन इसके अंदर लिखेंगे। जैसे अभी समझो अपन रहता ना, ये सॉन्ग रहता, जैसे तुमको बताता मैं साइट टैग का एग्जांपल। ये दिख रहा, मैंने इसको साइट टैग में लिख लिया।
हाँ साइड टैग क्या करेगा बेसिकली, ये दिख रहा, इसने भी वापस इटैलिक कर दिया। हाँ तो ये वही काम करता है, यानी साइड टैग बेसिकली क्या दिखाता, द स्क्रीम वगैरह, यानी द स्क्रीम वाज रिटन बाय दिस, ये है, यानी बहुत वो इंफॉर्मेशन दिखाता इटैलिक के अंदर। कोई क्रिएटिव वर्क रहेगा रिटन बाय, या फिर क्रिएटेड बाय, स्ट्रीम्ड बाय, संग बाय, जो भी ऐसे रहेंगे ना क्रिएटिव वर्क्स, वो सब साइड टैग के अंदर आएंगे। आ रहा समझ में? ये टैग्स बेसिकली ज्यादा यूज नहीं होते। जब अपन कोड करेंगे ना आगे, तो सीएसएस के अंदर तो मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं कि ये टैग ज्यादा यूज हो गए कभी। ये बस हम लोग है अभी सिलेबस इसके लिए पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है ये सब। हाँ फिर एक रहता है अपने पास बाय डायरेक्शनल ओवरराइड, यानी बीडीओ टैग बोलते हैं उसको। बीडीओ टैग क्या करता है बेसिकली, अपने को डायरेक्शन बताता। यानी अभी समझो बहुत सारे लैंग्वेजेस रहते हैं, अरेबिक में जब वेबसाइट बनाते हैं ना अपन, तो राइट से लेफ्ट में आते हैं ना अपन, रिवर्स लिखते हैं। हाँ तो इसमें एक वो रहता एट्रीब्यूट, डायरेक्शन बोल के। तो अभी इसमें अगर मैं दे दूं कि राइट टू लेफ्ट RTL, और उसमें मैं दे दूं lorem 10, तो अभी ये क्या करेगा, दिख रहा है क्या उल्टा आया, दिख रहा है कहाँ से स्टार्ट। ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करना ना प्लीज। डायरेक्ट ये क्या है, बीडीओ है, बीडीओ वाला। ओवरराइड, ये टैग का नाम है BDO। तो इसमें क्या रहता है कि एक ये रहता है अपने पास एट्रीब्यूट, जो क्या रहता है DIR, जो रहता है डायरेक्शन। ये क्या बताता कि अगर अपने को समझो अरेबिक वगैरह में अपन लिखते रहते हैं ना कभी कभी, तो अरेबिक में जब लिखते हैं तो डायरेक्शन क्या रहती, राइट से लेफ्ट जाते ना, हाँ कि लेफ्ट से जाते, अरेबिक राइट राइट से से लेफ्ट लेफ्ट। पढ़ते ना। हाँ अरेबिक उर्दू वगैरह जो लैंग्वेजेस रहती, वो राइट से हाँ लेफ्ट रहती। और कभी कभी कैसा रहता है कि यूजर को वो चाहिए रहता है कि बाबा अरेबिक में कोई कोट रहेगा, कुछ रहेगा, तो वो राइट टू लेफ्ट रहता ना, तो तब वीडियो यूज करते हैं अपन बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। हाँ ये टैग इसके लिए यूज होता है बाय डायरेक्शनल। तो इसमें तीन रहते हैं, एक तो RTL रहता, एक L2R रहता, LTR रहता, और एक ऑटो रहता। इसके तीन रहते हैं एट्रीब्यूट के, तो तीन वैल्यूज रहते हैं। अगर L2R करूंगा तो वो अपना नॉर्मल रहेगा। LTR क्या रहता, अपना नॉर्मल रेगुलर, यहाँ से यहाँ, जो अपन यूज करते हैं लेफ्ट टू राइट, वो तो बाय डिफॉल्ट रहता ना। समझ आ रहा? हाँ सर। हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट रहता है। राइट टू लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट टू राइट तो बाय डिफॉल्ट रहता ना। हाँ 12 क्या रहता है, ये उल्टा चल रहा, दिख रहा है ऐसे, लॉरेम इधर से चालू हो गया। हाँ तो ये रहता उसका टैग। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई हाँ डाउट सर। है, कुछ नहीं समझ आया तो अभी नहीं पूछ लो, क्योंकि आज से तुम्हारा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं सर। कुछ भी, शिबा, सानिया, साक्षी। RTL मतलब ये है ना, राइट टू राइट लेफ्ट, टू लेफ्ट। हाँ RTL टैग का मतलब ही हुआ राइट टू लेफ्ट। राइट साइड अपना माउस का जो रहता है ना, राइट से लेफ्ट, अपन जो पढ़ते हैं वो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अभी के इंग्लिश जो लिखते हाँ हैं लेफ्ट टू राइट रहता, लेकिन अरेबिक जो होती है वो राइट से लेफ्ट रहती। तो वो राइट से लेफ्ट RTL। रहती है। विशाल कुछ समझ में समझ आ रहा ना सब? साक्षी, हाँ सर। हाँ क्लियर है। अभी अभी तक आया है सर। ये सब समझ आ रहा ना? अभी इसके ऊपर असाइनमेंट्स आएंगे आगे। हाँ आज मैं सर डाल चलेगा। दूंगा असाइनमेंट्स, कल से हाँ अभी सॉल्व करके देना है, संडे की छुट्टी है ना, असाइनमेंट्स दूंगा मैं भी। हाँ सर आज चलेगा। अपन कैसा है, आज एक और चीज दिखाऊंगा मैं, कमेंट्स और लिंक्स। लिंक टैग बेसिकली क्या रहता, कमेंट और लिंक एक बार हो गया तो उसके बाद से फिर अपना तुमको असाइनमेंट चालू हो जाएंगे, क्योंकि जब से लिंक पढ़ लेंगे तो मल्टीपल पेजेस के साथ तुमको डील करने आ जाएगा। समझ रहे? अच्छा। हाँ सर। जैसे अपन एक पेज से दूसरे पेज पे आते ना, क्लिक मी का ऑप्शन आता अपने को, आता ना, हाँ हाँ सर। क्लिक मी का ऑप्शन रहता, तो अपन उस पर जैसे बराबर। क्लिक करते तो अपने को दूसरे साइड पे लेके जाता ना वो।
हाँ, तो वो सब अभी पढ़ेंगे अपन। तो हाँ उसके लिए फिर तो दो कवर ये करेंगे। बनाना पड़ेगा ना सर, हाँ 2 फ्रेम बनाना पड़ेगा ना। हाँ, 2 फ्रेम अभी इसमें बताऊंगा मैं तुम लोगों को क्या है। अच्छा अभी मैं मीटिंग अभी एंड कर रहा, अभी क्या 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी मीटिंग। फिर हाँ से सर, लिंक, फिर से वही लिंक पे ज्वाइन कर दो बाद में। हाँ हाँ चलेगा। सर चलेंगे। तो ये यहाँ तक सब क्लियर बस है, कल का सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं, है? मेरा मेरा एक क्लियर नहीं है, डाउट है वो एब्रीवेशन वाला। 1 सेकंड है शिवम, मैं ये बंद कर देता। वापस ज्वाइन करते सर।